Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Analytic Geometry of 3 dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.2. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5. Find the direction cosine of coordinate axis. Find the direction cosine of coordinate axis. Number 1, direction cosine of x-axis. Direction cosine of x-axis, because x-axis line makes an angle of 0 degree, 90 degree and 90 degree with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Because x-axis line makes an angle of 0 degree, 90 degree and 90 degree with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then direction cosines are cos 0, cos 90. Cos 90 होगा 1, 0, 0 and direction cosine of x-axis are 1, 0, 0. Similarly, direction cosine of y-axis are 0, 1, 0 and direction cosine of z-axis are 0, 0, 1. By direction cosine of x-axis क्या बनेंगे 1, 0, 0. Similarly, direction cosine of y-axis क्या होगा 0, 1, 0 and direction cosine of z-axis क्या होगा 0, 0, 1, 0. We prove that if the measure of the direction angles of a straight line are alpha, beta, gamma, then आपने साबित करना sin square alpha जमा sin square beta जमा sin square gamma is equal to 2. If measure of direction angles of a straight line are alpha, beta, gamma, then आपने साबित करना sin square alpha जमा sin square beta जमा sin square gamma is equal to 2. Because direction angles are alpha, beta, gamma, so direction cosine will be cos alpha, cos beta and cos gamma. We know cos square alpha जमा cos square beta जमा cos square gamma is equal to 1. By we know cos square alpha जमा cos square beta जमा cos square gamma is equal to 1. So cos square alpha की जगह पे 1 1 फिर sin square alpha, cos square beta की जगह पे 1 1 फिर sin square beta, cos square gamma की जगह पे 1 1 फिर sin square gamma is equal to 1. Simplify करेंगे we see sin square alpha जमा sin square beta जमा sin square gamma is equal to 2. Question number 7 है, if measure of two direction angles of a straight line are 45 degree and 60 degree, find measure of the third direction angles. भाई दो डायरेक्शन एंगल दिए हुए हैं, थर्ड डायरेक्शन एंगल की डिमांड करें. If measure of two direction angles of a straight line are 45 degree and 60 degree, find measure of the direction angles. Find measure of the third direction angles. अल्फा हमारे पास 45 डिग्री, बीटा हमारे पास गामा डिग्री, गामा we want. भाई अल्फा इज अवेलेबल, बीटा इज अवेलेबल, गामा इज वांटेड है जी. तो डायरेक्शन साइन क्या होगा cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos गामा जी. We get 1 by under 2, 1 by 2 and cos of gamma. And we know cos square alpha जमा cos square beta जमा cos square gamma is equal to 1. Then we know cos square alpha जमा cos square beta जमा cos square gamma is equal to 1. यहाँ से cos square gamma is equal निकला 1 by 2, cos gamma निकला plus minus 1 by 2. भाई cos gamma निकला plus minus 1 by 2. भाई cos gamma निकला आपका cos inverse plus minus 1 by 2 and gamma क्या होगा 60 डिग्री. Question number 8. The direction cosines of two straight lines are given by the equations L m plus n equal to 0 and L square plus m square minus n square equal to 0. Find measure of the angle between them. उनके दरमियान आपने angles निकालने हैं जी. The direction cosines of two straight lines are given by the equations this and this. Find measure of the angle between them. आपने angle between them निकालना. L m plus n equal to 0 इसको 1 कह दें, L square plus m square minus n square equal to 0 इसको 2 कह दें. फ्रॉम फर्स्ट हमने एन की वैल्यू निकाल लीजिए. जब स्क्वायर किया तो भाई एन स्क्वायर बराबर होगा एल प्लस एम का होल स्क्वायर. इसको पुट इन टू वी गेट एल एम इक्वल टू 0. यहाँ से एल 0 या एम 0. पहले एल 0 पुट इन 3 में पुट करेंगे तो भाई जन एन इज इक्वल टू माइनस एम जी. वी राइट एन ओवर माइनस 1 बराबर एम ओवर 1 जी. यहाँ से एल इज इक्वल टू 0. टेक एल इज इक्वल टू 0. पुट इन 3 एन इज इक्वल टू माइनस, हम क्रॉस करें एन ओवर माइनस 1 एल ओवर 1. तो आप एल ओवर 0 इज इक्वल एम ओवर 1 इज इक्वल एन ओवर माइनस 1. इसको नीचे भेज देना. तो एल इज इक्वल टू 0 इंटू टी जी. नाउ एल ओवर 0 बराबर एम ओवर 1 इज इक्वल एन ओवर माइनस 1 जी. डायरेक्शन रेशो ऊपर डायरेक्शन को साइन होते नीचे डायरेक्शन रेशो 0 1 और माइनस 1 जी. और डायरेक्शन रेशो हो तो डायरेक्शन को साइन किस तरह बनाएगा, तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर नजर आके तीनों के लिए डिवाइड करते हैं. डायरेक्शन को साइन का होगा 0 1 by under 2 and minus 1 by under 2. Now take m is equal to 0.
पुट इन 3 n इज इक्वल माइनस एल, क्रॉस कर दें कोफिशिएंट्स को तो n ओवर माइनस 1 इज इक्वल n ओवर 1. वी राइट इन सिमेट्रिक फॉर्म l ओवर 1 इज इक्वल m ओवर 0 इज इक्वल n ओवर माइनस 1. ऊपर आपके डायरेक्शन को साइन है तो नीचे डायरेक्शन रेशियो का 1 0 माइनस 1. अगर डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन को साइन क्या होगा, तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डालना. वी गेट 1/√2 0 एंड माइनस 1/√2. नाउ ऊपर आपके पास डायरेक्शन रेशियो थे, आपने डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट कर लिया. एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज, भाई दो लाइनों के दरमियान आपने एंगल निकालना है. दो लाइनों के दरमियान क्या निकालना है, आपने एंगल निकालना है. cos थीटा बराबर होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. वी गेट cos थीटा इज इक्वल 1/2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 एंड विच इज 60. भाई जना हमें पता है L इज इक्वल 0 था इन लास्ट क्वेश्चन, तो L इज इक्वल 0 इंटू टी कर लें. अब ये है डायरेक्शन रेशियो, तो भाई आप इसको नीचे भेज दो जी, तो L ओवर 0 इज इक्वल टू टी हो जाएगा. भाई मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जी. भाई मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जी. द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 एंड 2LM प्लस 2LN माइनस M इक्वल टू 0. भाई ये दो लाइनें दो मसावाते हैं. फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, आपने एंगल बिटवीन दैम निकालना है, उनके दरमियान एंगल. फाइंड एंगल बिटवीन दैम, उनके दरमियान एंगल निकालना है. वी हैव दिस वन एंड दिस टू. फ्रॉम 1 N की वैल्यू निकाल ली, माइनस बाहर L पर लगा से इसको सीखा दिया. पुट इन 2 भाई जहाँ जहाँ N था वहाँ पुट माइनस L प्लस M. नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, वी गेट 12 स्क्वायर माइनस LM माइनस M स्क्वायर इक्वल टू 0. फैक्टर करेंगे तो 12 प्लस M इंटू L माइनस M इक्वल टू 0. तो आइदर 12 प्लस M इक्वल टू 0 और L माइनस M इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0. ठीक है जी. तो सॉल्विंग L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, तो आपने क्या करना है भाई जी, ये हमारे पास था पहली मसावात जी. तो आपने ये दोनों हमारे पास, ये दूसरी मतलब 2L प्लस M प्लस 0. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, L ओवर माइनस 1 आएगा, M ओवर माइनस 2 आएगा और N ओवर क्या आएगा माइनस 1. तो L ओवर माइनस 1, M ओवर 2 और N ओवर माइनस 1 जी. ऊपर आपके पास डायरेक्शन को साइन है, नीचे डायरेक्शन रेशियो होंगे. डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है -1, 2 और -1. अगर डायरेक्शन रेशियो हो तो डायरेक्शन को साइन किस तरह निकलेगा, इन तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी. भाई ऊपर क्या करके सम करके स्क्वायर करके ऊपर जैसा, तो भाई क्या होगा, डायरेक्शन को साइन क्या होगा 1/√6, 2/√6 एंड -1/√6. Similarly, we have L plus M plus N equal to 0, and second we have L minus M plus 0 and equal to 0. So L over 1 minus M over minus 1, N over minus 1 or minus 1. So L over 1, M over 1 और N over minus 2. डायरेक्शन रेशियो का 1 1 minus 2. डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन को साइन का तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा, तो वी गेट 1/√6, 1/√6 एंड माइनस 2/√6. अब दोनों के डायरेक्शन को साइंस आ गए हैं जी आपके पास, दोनों के डायरेक्शन को साइंस आ गए हैं आपके. Now angle between two straight line is cos theta बराबर होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. We simplify, we get 1/2. cos theta निकला 1/2, थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 1/2 and this is 60 डिग्री and this is 60 डिग्री. But we have A1x plus B1y plus C1z equal to 0. A2x plus B2y plus C2z equal to 0. भाई दो मसावातें हमारे पास हैं और अननोन 3 है जी. भाई मसावातें 2 हैं और अननोन एक्स वाई जी हैं. तो वैल्यू निकालने का तरीका करें, एक्स बराबर है माइनस वाई बराबर है जी. भाई एक्स बराबर है माइनस वाई बराबर है जी. एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो इसको छुपा दें. तो क्या होगा, B1 को C2 के साथ रख दे दो, माइनस B2 को C1 के साथ रख दे दो. B1 C2 माइनस B2 C1, और पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. वाई की निकालनी तो इसको छुपा दो जी. A1 को C2 के साथ माइनस A2 को C1 के साथ. जब जी निकालना तो भाई क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1 जी. भाई पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. भाई x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू जी. तो ये होती हैं प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालने के लिए. तो भाई जिनका होगा B1 को C2, जब x निकालना तो x को छुपा दें. क्या होगा, इसके ऑप्शन को इसके साथ रख दो, B1 C2 माइनस B2 C1 जी. जिसको निकालना हो उसको छुपा दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. फिर y निकालना तो इसको छुपा दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. जब जी निकालना तो भाई इसको छुपा दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगे जी.
जी फाइंड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एल एंड एम इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में आपने मसावातें निकाली एल और एम की। डिटरमिन वेदर द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्ट, आपने चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ इट एग्जिस्ट, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अगर एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12 तक। नो 10 क्वेश्चन एल है, ये पॉइंट हमारे पास है 2 1 3 एंड बी हमारे पास है -1 2 एंड -4। एम इज पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। नो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, भाई एक आप L1 कह दें, एक आप M कह दें, एक L कह दें, एक M कह दें। भाई जन एक आपकी L है और एक आपकी M है जी, एक आपकी L है और एक आपकी क्या जी M है जी। नाउ पैरामीट्रिक इक्वेशन आर x इज इक्वल 2 + 3p, y इज इक्वल 1 - p एंड z इज इक्वल 3 + 7p, x इज इक्वल 5 + 5p, y इज इक्वल 1 - 3q एंड z बराबर 2 - 5q। ये आपका L है, ये आपका M है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये L और M जी। सपोज टू लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट x0 y0 z0। भाई दो लाइन फर्ज कर लें का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है और उसके कंपोनेंट x0 y0 z0 है। ठीक है जी। सपोज टू लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x1 y0 z0। सो ये सेटिस्फाई करेगा जी। तो x0 बराबर होगा 2 + 3p, y0 बराबर होगा 1 - p, z0 बराबर होगा 3 + 7p, और x0 होगा 5 + 5q, y0 होगा 1 - 3q एंड z0 होगा 2 - 5q। इसको आप L डैश कह दें, इसको M डैश कह दें। वजन देखें ना, ये L और M था, आपने x की जगह पे x0 पुट किया, y की जगह पे y0 और z की जगह पे z0, क्योंकि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखें, फर्स्ट में दोनों के लेफ्ट इक्वल, देन राइट इक्वल, सेकंड में दोनों के लेफ्ट इक्वल, देन राइट मस्ट बी इक्वल, थर्ड में लेफ्ट इक्वल, देन राइट मस्ट बी इक्वल। फ्रॉम L डैश एंड M डैश वी हैव जी। तो आपके पास 1 2 3 मसावातें आ गई। सॉल्विंग 2 and 3 जी। भाई दूसरी और तीसरी को सॉल्व किया, कोई दो ले लें। आपने दूसरी और तीसरी को सॉल्व किया, P निकला -15/26 और Q निकला -5/26। अब आपने दूसरी और तीसरी को हल किया, इसको पुट इन 1 करते हैं जी। बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन 1 जी। तो वी सी लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल राइट हैंड जी। भाई वी सी लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह है -43/26, यह है -20/26, नॉट इक्वल, विच इज अनबैलेंस्ड, ये अनबैलेंस है। Hence given lines do not intersect, लिहाजा दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जी। भाई दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जी। नो वी हैव R इज इक्वल L इज इक्वल R इज इक्वल टू एंड M इज इक्वल M दिया हुआ R इज इक्वल समथिंग जी। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या बनेगी? R की जगह पे यू पुट xi + yj जमा z के, तो वी गेट x बराबर है 3 + 60, y बराबर 2 - 40 एंड z बराबर -1 - 30। x बराबर 5 + 14s, y बराबर 4 - 6s और z बराबर 7 + 2s। ये L और M कहते हैं। सपोज टू लाइन इंटरसेक्ट एट P x0 y0 z0, सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई यू। भाई ये पॉइंट फर्ज करें, दो लाइन इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करती हैं, ये पॉइंट दोनों को क्या करेगा जी? सेटिस्फाई कर देगा। भाई ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दिस पॉइंट के ऊपर, सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई। ये पॉइंट उसको क्या करेगा जी? सेटिस्फाई करेगा जी। यानी कि x की जगह पे x0 पुट करें, y की जगह पे y0 पुट करें, z की जगह पे z0 पुट करें, इधर और इधर। भाई सॉल्विंग 2 and 3 वी गेट t इज इक्वल टू -2 एंड s इज इक्वल टू -1। अब आपने दूसरी और तीसरी को हल किया जी, इन दोनों को। अब पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ t एंड s इन 1 जी, तो वी सी 9 इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाइड है। भाई जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, शोज गिवन टू लाइन इंटरसेक्ट। भाई गिवन लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कैन बी ऑब्टेन एज, आप t की जगह पे -2 पुट कर दें, t की वैल्यू क्या हमारे पास -2 जी, ठीक है, या s इज इक्वल -1 पुट कर दें। वी पुट t इज इक्वल टू इन L डैश, वी गेट x0 इज इक्वल टू -9, y0 इज इक्वल 10 एंड z0 इज इक्वल 5। देयरफॉर p का बनेगा -9 10 और 5 जी। नाउ 12th क्वेश्चन, L through the point this and parallel to this vector, M through the point this and parallel to this vector C। भाई L और M दिया हुआ है जी। भाई जन L और M उसने दिया हुआ है जी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेगी, तो सपोज टू लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट x0 y0 z0 जी, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसको आप L डैश कह दें, इसको M डैश कह दें। अब फ्रॉम L डैश एंड M डैश वी हैव 1 2 3 मसावातें। From 2 and 3 we solve 2 and 3, we get p is equal to -1 and q is -1 जी। Putting the value of p and q in 1 में put कर दें,
we see left is equal to right. Satisfied? भाई left is equal to right. Satisfied है? तो shows given two straight line intersect and point of intersection can be determined as. भाई so given two straight line intersect and their point of intersection can be obtained as. G. Put P is equal to -1 in L dash. We see x नॉट निकलेगा -2, y नॉट निकलेगा -4 और z नॉट निकलेगा 2. देयरफॉर P हमारे पास होगा -2, -4 एंड 2.